السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. Which ayat are we studying today, Chand aunty? آیت نمبر 49 سورت ہے البقرہ پارا نمبر 1 49 onwards. انشاءاللہ. اوکے تو سب سے پہلے تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے پارا نمبر 1. یس شمیم. نشاط کے یہاں پہ پاور کٹ آف ہوا ہے. I understand, no issues. Okay. Okay. So تلاوت ہوگی سب سے پہلے. Over to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sheikh Maryam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. By the end of the class, inshallah, we will discuss about these 10 days of Zilhijjah, first 10 days, inshallah. Kindly remind me by the end, Shamim. And kindly share the screen. ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1, آیت نمبر 49 onwards. So آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, وہ اور, از جب, نجئی نجات دی, بچا لیا, نا ہم نے, کم تم کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اور از جب, یاد کرو جب, نجئی بچا لیا, نا ہم نے, کم تم سب کو. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. کس سے بچا لیا تم سب کو؟ من آلی فرعون,
फिरौन वालों से, आली कहते हैं वाले, तो फिरौन वालों से। यसुमूनकुम, क्या थी उनकी तकलीफ? यसुमूनकुम, वो डालते थे तुम पर, वो पहुंचाते थे तुमको। सू अल अजाबी, बहुत बुरा अजाब। सू बहुत बुरा, अजाबी अजाब तकलीफ। क्या थी उनकी बड़ी तकलीफ? युज़ब्बिहूना, इसमें ज़िबाह वर्ड है, ज़बाह, वो ज़बाह करते थे। दे यूज्ड टू स्लॉटर, किल, वो ज़बाह करते थे। अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को, योर सन्स। वयस्तहयूना, व और यस्तहयू में हयात वर्ड है, और वो जिंदा छोड़ देते थे। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को वो जिंदा छोड़ देते थे। वफी ज़ालिकुम, और इस बात में, बलाउन, एक आजमाइश थी, एक आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब से। ये आजमाइश किसकी तरफ से थी? तुम्हारे रब की तरफ से। अजीम, कैसी थी आजमाइश? बहुत बड़ी। इट वॉज अ ग्रेटेस्ट ट्रायल। इंग्लिश में करेंगे इंशाल्लाह। आयत 49, वइज़, and when, try to remember when, najjaynakum, we saved you. Who? Allah Ta'ala saved you. Who is you? Bani Israel, the children of Israel. From whom? Min Ali Fir'aun, from the people of Fir'aun. Why? How did he save from what? Yasumunakum, they were afflicting you. Su al azabi, with horrible torment, horrible torture. Yuzabbihuna, by slaughtering abna'akum, your sons, by slaughtering and killing your sons. Wayastahyuna, and letting to live nisa'akum, your wives, your women. Wafi dhalikum, and in it, bala'un, was a trial. Mir rabbikum, from your Lord, from your Rabb. Azim, the Rabb is Azim, or the trial was also Azim, means great. Allahu Akbar. So now, from these ayat, we are going to study how Allah subhanahu wa ta'ala reminds Bani Israel of all the blessings, Allah had bestowed upon the Bani Israel. Now, what is the blessing here? Allah Ta'ala is reminding, Allah Ta'ala याद दिला रहे हैं कि याद करो ए बनी इसराइल. याद करो वर्ड कहाँ आया था? आयत नंबर जहाँ रुकू स्टार्ट हुआ था ना, या बनी इसराइल अस्कुरु, याद करो मेरी नेमतें. तो अब हर आयत में अल्लाह ताला एक एक नेमत याद दिला रहे. इन एवरी आयत Allah is going to remind a blessing, and blessing, very greater blessings that Allah had bestowed upon them. ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर की थी, वो याद दिला रहे हैं. याद दिला रहे हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है? शमीम, चांद आंटी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में याद दिला रहे हैं, लेकिन वाकया कभी हुआ? पहले, बहुत सालों बहुत पहले पहले का. से. हाँ, तो पुरानी बात याद दिला रहे हैं कि एक जमाने में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ये नेमतें अता की थी. तो वो तो पहले हो चुका, अभी क्यों याद दिला रहे अल्लाह ताला? कि अभी जो बनी इसराइल मौजूद थे, कहाँ? मदीना में,
تو یہ بنی اسرائیل ان بس بنی اسرائیل کی اولادیں ہیں, isn't it, from the generations, برابر. تو وہ جو پہلے کے بنی اسرائیل جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے, یہ کون تھے؟ ان کے فور فادرز. گاٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ ان کے فور فادرز, بنی اسرائیل کے فور فادرز کی بات یہاں پر یاد دلا رہے ہیں. یاد دلا رہے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشنز بھول جاتی ہے نا کہ ان کے باپ دادا کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور بھول بھی جاتے ہیں, کبھی یاد دلانا پڑتا ہے اور کبھی اس کا احساس دلانا پڑتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے. اب ہم دیکھیں گے یہ احساس ورڈ کو یاد رکھنا ہے. اوکے, سو ریمائنڈ می دس ورڈ احساس ونس اگین, چاند آنٹی پلیز. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ سٹوری کب کی ہے؟ دس واز بیفور دا برتھ آف موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے وقت کی بات ہے. گاٹ اٹ؟ وہ آپ کو وہاں لکھ لینا اس آیت کے پاس کہ یہ آیت کب کی ہے, یہ واقعہ کب کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کیا ہوا تھا. Who was the king? Who was the ruler? The ruler was Fir'aun. All the rulers in that time in Egypt were called as Fir'aun. ان کا لقب تھا, یہ ٹائٹل. تو یہ جو فرعون تھا, اس کے بارے میں کیا ہوا کہ اس نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب میں اس کو نظر آیا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی ایک بندہ, کوئی ایک آدمی اس کا غرور توڑے گا ایکسکیوز می, اور اس کے ہلاکت کا سبب بنے گا. One of the Bani Israelite young boy, he will be a cause to the destruction of this Pharaoh era of that time. تو جب اس نے یہ خواب دیکھا تو کیا ہوا کہ اس نے اپنے he was a king, تو اس نے پورے کنٹری میں یہ نیو رول بنا دیا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوگا اینڈ جو بھی لیڈی پریگننٹ ہوگی, سو دا مڈ وائفز, دا نینی جو ہوتے ہیں جو ڈیلیوریز کرواتے ہیں, ان سب کو حکم دے دیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کا, اور اگر وہ لڑکا ہو, if it is a boy, نیو بورن بوائے, تو اس کو وہیں پر مار دیں گے. You have to kill the baby at once, baby boy. اور اگر بیبی گرل پیدا ہوئی, لڑکی پیدا ہوئی, تو اسے نہیں مارنا ہے, اسے زندہ چھوڑ دینا ہے. تو یہ جب ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو مار دے رہے تھے, اور صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں بچ گئی. اور ان لڑکیوں کو بھی جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان سے بہت سخت کام کروایا جاتا. They were put into slavery and into prostitution and all kinds of hardships. کیونکہ بنی اسرائیل کو جو فرعون تھا, اس نے بنی اسرائیل کو سلیوز بنا کر رکھا تھا, ان کو غلام بنا کر رکھا تھا. تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے, آپ سوچئے کہ in every house, پورے کے پورے بنی اسرائیل, there were almost 6 lakh بنی اسرائیل in Egypt at that time. کتنے تھے؟ How many بنی اسرائیل؟ 1 lakh. 6 lakhs. 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے, اور ان کو کیا بنا کر رکھا ہوا تھا؟ سلیوز, غلام. اور ان سلیوز سے وہ فرعون کیا کام کرواتا تھا؟ ان سے کنسٹرکشن کا کام کرواتا تھا. The Pharaoh was very fond of architecture and construction. تو بڑی بڑی بلڈنگز اینڈ ڈیمز اینڈ فورٹس, اور وہ جو ایجپشین پیرامڈز, اور اتنا کنسٹرکشن کا کام ان سے کرواتا تھا ایز اے سلیو, زبردستی. اینڈ ہی وڈ ہارڈلی پے اینی ریمنریشن. اور پھر اب بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ان کو بھی قتل کر رہا ہے,
और बेटियों को जिंदा छोड़ रहा है। सो ये हो रहा था कि कुछ सालों में द रूलिंग पार्टी में से ही मिनिस्टर्स कंप्लेन करने लगे कि अगर इनके सारे लड़कों को मार देंगे तो फिर हमारे काम कौन करेगा, हमारा कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट जनरेशन तो होगी ही नहीं, फिर हमारा काम कौन करेगा। तो फिर दे हैड एन आइडिया कि हम अब हर साल नहीं, एक साल में जितने लड़के होंगे उनको मार देंगे, और दूसरा एक साल ऑल्टरनेट ईयर्स में मारेंगे और ऑल्टरनेट ईयर्स में नहीं मारेंगे। सो कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा जुल्म था, कितना बड़ा टॉर्चर, isn't it? Can you imagine क्या गुजर रही होगी उन पर, Can't है even ना? imagine. It's very Yes. very very it's very, you can't even imagine कि हमारे बच्चे You को कोई can't ऐसा- imagine. और वो भी innocent babies, छोटे छोटे न्यू बॉर्न। सोचो आप कि क्या उन लोग का हाल हुआ होगा। एंड किंग कर रहा है ये, दिस इज कमिंग फ्रॉम द एम्परर। तो आप किसके पास जाके शिकायत करोगे? देयर इज नो वेयर टू गो एंड नो वेयर टू कंप्लेन। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश थी। तो अब इससे क्या लेसन मिलता है हमको कि टॉर्चर भले फिरौन कर रहा था, बट अल्लाह ताला हिमसेल्फ सेज कि ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। सो व्हाट इज द मॉरल? क्या समझ में आई बात? That Allah tests those whom He loves. ओके, वन थिंग। और कि हर मुसीबत जो भी आती है वो भी अल्लाह के इज़्ज़त से ही आती है। एग्जैक्टली कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानी सब अल्लाह की तरफ से है। और जब बंदे अल्लाह को भूल जाते हैं या अल्लाह की इबादत करना छोड़ देते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां बढ़ जाती है, तो अल्लाह ताला उन लोगों पर ऐसे बादशाह, ऐसे रूलर्स मुसल्लत कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं कि वो उन पर जुल्म करे। और एक्चुअली वो नहीं जुल्म कर रहा होता है, वो अल्लाह ताला की आजमाइश, इट्स अ प्लानिंग, पार्ट ऑफ द प्लानिंग। तो इसीलिए अब मेरा वो क्वेश्चन, आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, एहसास। तो ये किसके साथ हुआ था? ये तो अभी मूसा अलैहिस्सलाम अब तक पैदा ही नहीं हुए हैं, वो टाइम की बात हो रही है। और अभी बनी इसराइल जो मदीना में मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनको क्यों याद दिलाया जा रहा है? उनको क्यों कहा जा रहा है कि याद करो हमने कैसे तुमको बचाया था फिरौन से, जब फिरौन तुम पर ये जुल्म कर रहा था। तो फिर ये नेमत कैसे हुई है? तो आजमाइश थी। समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक सो आप में से कोई भी ये पहली बार पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, राइट? तो थिंक अबाउट इट, इट्स अ माइंड बूस्टिंग क्वेश्चन। मुझे क्यों बताया जा रहा है, आपको क्यों बताया जा रहा है, इस बनी इसराइल की कौम को क्यों बताया जा रहा है कि इनके बाप दादा के साथ क्या हुआ था और उनको बचाया गया था? तो ये उनको बचाया गया था, उनके लिए नेमत थी, इनको क्यों बताया जा रहा है? Is there any answer? Anybody? Raise your hand. Question सुना आपने? जरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे चांद आंटी? कि ये तो बनी इसराइल के साथ ये सब हुआ और गुजरा, तो वो उन लोगों को क्यों बताया जाता है इनके बारे में, क्यों? एग्जैक्टली उनकी नेक्स्ट जनरेशन को क्यों बताया गया? अगर अल्लाह ताला उन्हें ना बचाते तो फिर बनी इसराइल सारी नस्ल ही खत्म हो जाती। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यस नसीम। ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें और हम वही काम ना करें जो वो लोगों ने किया था। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ पॉइंट ये है, यस सुरैया बोलिए। सुरैया जी बाजी, मेरा भी वही जवाब है, ताकि हम भी मोरल लें और हम भी ना शुक्री ना करें अल्लाह की। वेरी गुड। बट आयशा वाज 100% राइट। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर आयशा ने दिया। वो क्या था
کہ دیکھیے یہ جو جنریشن بنی اسرائیل کی موجود تھی مدینہ میں، ان کے فور فادرز تھے وہ، اگر اللہ تعالی ان کو نہیں بچاتے اس فرعون کے ظلم سے، تو فرعون تو بنی اسرائیل کے ہر آدمی کو مار رہا تھا، تو اگر ہر ایک مر جاتا تو آج تم جو زندہ ہو وہ تم زندہ کیسے ہوتے؟ گاٹ مائی آنسر ناؤ؟ آج تم جی باجی، زندہ جو ہو، ہاں وہ جو سارے بنی حبیب بھی اسرائیل، بنی اسرائیل سے آئے. جی باجی. ایگزیکٹلی تو اگر وہ سارے اس وقت ختم ہو جاتے اور فرعون کا ظلم ختم ہی نہیں ہوتا تو پھر آج تم زندہ ہی نہیں ہوتے. تو تم زندہ ہو کیونکہ تمہارے باپ دادا ان کے دادا پر دادا وہاں تک کے all this generation یہ کیونکہ اللہ نے بچایا. بھلے آزمائش اللہ کی طرف سے ہی تھی پر بچایا بھی کس نے؟ اللہ نے. تو پھر یہ کیا ہوئی؟ نعمت ہوئی، نعمت. گاٹ اٹ؟ دا بلیسنگ کہ اللہ سیوڈ یو فرام اٹ، اور اسی لیے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس جنریشن کو جب بتایا جا رہا ہے. گاٹ اٹ؟ تو پھر وہ کہانی امپورٹنٹ نہیں ہے. دا امپورٹنٹ پوائنٹ از اللہ، Allah's نعمت، Allah's blessing. تو تم آج اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو تم پھر اللہ کی اس نعمت کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو، تو پچھلی نعمتیں یاد کرو. گاٹ دا پوائنٹ ناؤ؟ یس الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا یہ تو یہاں پہ بتایا نہیں، وہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے اس ظلم کو روکا. تو ان شارٹ میں بتاتی ہوں اینڈ دین ویل موو ٹو دا نیکسٹ آیت، بیکاز اف دیر آر اینی نیو جوائنیز تو وہ تو کنفیوژن میں رہیں گے کہ ہوا کیا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ وہ جو آلٹرنیٹ ایئر ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی his elder brother was born in that alternate year، جس سال مارنا نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام was born and he was not killed because وہ سال مارنا نہیں تھا. اس کے بعد جس سال مارنے کا حکم تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ممی was pregnant and when she was pregnant she was so thin، اتنی کمزور تھی وہ اور اتنی غریب تھی کہ نا ان کی پریگننسی نظر بھی نہیں آتی تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ she was pregnant. That thin and frail she was. تو پھر جب ان کی پتہ ہی نہیں چلا نا، وہ مڈ وائف آئی بھی نہیں ان کے پاس، اور انہوں نے چپ کے گھر میں ہی اپنی ڈلیوری کرا لی. اب بچہ بورن ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی بچے کو بچانا چاہتے تھے. It was baby موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا، اللہ نے ان کو الہام کیا کہ وحی کے ذریعے کہ اپنے بچے کو خوب اچھے سے دودھ پلا لو. when بیبی کا پیٹ فل ہو جائے تب کیا کرنا، وہ جو سولجرز آئیں گے ان کو پتا تو چلے گا نا، جب بچہ بورن ہوگا تو اب بچے کو نہیں چھپا سکتے، تو وہ جب مارنے آئیں گے نا اس سے پہلے بیبی کو ایک باکس میں، ایک صندوق میں ڈال کر اس ندی میں پانی کے بہا دینا. اللہ اکبر. ناؤ دیکھیے آزمائش بھی اتنی بڑی اور اس کا سلیوشن بھی اتنا ڈیفیکلٹ، بٹ کوئی اور سلیوشن ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ماں نے اپنے بچے کو خوب اچھے سے دودھ پلایا اور ریپ کیا اور ایک باکس میں، صندوق میں ڈال کر، ووڈن باکس میں، اور ان کو پانی میں بہا دیا. اور ان کی جو بڑی بہن تھی، یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بھی تھی، وہ ندی کے کنارے سے چل رہی تھی to keep a watch on the baby. And just imagine کہ کیا وہ ماں پر گزری ہوگی، and کتنا بڑا ان کا کلیجہ، کتنا بڑا دل. You know how brave she must be, but there was no choice. اگر ایک بچے بیمار ہے اور اس کے لیے سرجری کرنا ہی ہے نیو بورن بیبی کی،
تو وہ ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے نا آپریشن تھیٹر میں ود the doctors and how you know. تو سملرلی یہاں پہ بہا دیا بچے کو اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا کہاں پتہ ہے نا آپ کو؟ بتاؤ کس کے گھر میں پہنچ گئے, کس کے ہاتھوں میں پہنچ گئے بیبی موسیٰ علیہ آسیہ, السلام؟ فرعون آسیہ کے حضرت گھر. فرعون کے گھر. Yes, Hazrat Asiya, she was the wife of Firaun. But Raziyallahu anha, she was very kind and one of the best ladies mentioned in the Quran. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسٹ ہاتھوں میں پہنچا دیا, بٹ تھی وہ فرعون کی وائف. شی واز the queen of Egypt. اور اللہ نے اتنی محبت ڈال دی ان کے دل میں that she said we are going to adopt this baby because ان کے بچے نہیں تھے and she wanted to adopt. اینڈ فرعون بھی راضی ہو گیا, اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کب بورن ہوا ہے بچہ اور ہم تو سب لڑکوں کو مار رہے ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے غفلت ڈال دیتا ہے. اسی فرعون کی جس نے حکم دیا ہوا ہے, آج اس فرعون کے عقل پر پردہ پڑ گیا. کس نے ڈالا وہ پردہ اس کے عقل اللہ پر؟ نے. اللہ نے. otherwise he would have thought instantly, isn't it? He was so intelligent and smart. بٹ اللہ نے اس کے دل میں وہ سوچ آنے ہی نہیں دی. کس چیز کا پردہ پڑ گیا؟ محبت کا. اللہ نے ڈال دی اور پھر وہ ابھی اسی کنگ کے گھر میں پل رہے الحمدللہ. اور کیسے ماں کو بھی وہاں تک پہنچا دیا. all that we will study. کوئی بچہ that child was not ready to suckle کسی ممی کا دودھ, پھر کیسے بہن نے اپنی ممی کو وہاں تک پہنچایا and how پوری فیملی پھر سے got united by the izn of Allah. And alhamdulillah, it was an happy ending. Rather, it was a happy beginning. Alhamdulillah. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایز اے پرنس پلے بڑھے اور he was a very strong man. پھر کیا ہوا؟ ایک بار غلطی سے by mistake موسیٰ علیہ السلام سے کسی کا قتل ہو گیا. انہوں نے صرف کسی کی میڈیشن میں اس کو ایک پنچ مارا, بٹ ہی واز سو اسٹرانگ کہ اللہ کی اذن سے اس کی تو موت ہو گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ہی واز اے ینگ مین کہ اب فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے مدین for 10 years. There he lived, he got married and all. کیسے اللہ نے ان کی وہاں لائف اینڈ وائف بنائی. اینڈ دین الحمدللہ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایٹ دا ایج آف 40. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم, تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دو, ہارون علیہ السلام کو. تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اب دونوں بھائیوں سے اللہ نے کیا حکم دیا کہ جاؤ اب فرعون کے دربار میں. اب ایک اور چیلنج, اتنا بڑا چیلنج کہ واپس فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کو ہی اسلام کی اللہ کی دعوت دو. اینڈ دین آل دیٹ وی ول اسٹڈی ان دا قرآن لیٹر آن کہ کیا ہوا فرعون کے دربار میں اینڈ آل. دین موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون اب تم جو ہے نا بنی اسرائیل کو چھوڑ دو, جتنے غلام ہیں 6 لاکھ ان کو چھوڑ دو, میرے حوالے کر دو, set them free. تو فرعون کیسے مانے گا, وہ تو نہیں مان رہا تھا. فائنلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کیا کریں کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائے, ورنہ فرعون آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. تو فائنلی بہت سالوں کی دعوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام راتوں رات 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ چھوڑ کر نکل پڑے quietly, secretly. There were no mobile phones, no Wi-Fi, no data. Just imagine. No WhatsApp, no Zoom calls. And still, all of them managed. جیسے ہی وہ سمندر کے پاس پہنچے تو کیا ہوا؟ This we will study in the ayat 50. اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں and then we will do the word to word. تو جیسے ہی وہ سمندر کے پاس پہنچے, ابھی آگے کوئی راستہ نہیں ہے. There is only sea, Dead Sea ahead, and that was a Red Sea actually. And پیچھے دشمن آ کھڑا ہوا, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ, کیونکہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام
is taking all the Bani Israel with him, rescuing them. So पीछे फिरौन दुश्मन और आगे समंदर, nowhere to go. इतनी बड़ी आजमाइश, अगेन इतना बड़ा चैलेंज, अब क्या करें? तो बनी इसराइल तो डर गए, बोले मूसा तूने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, अब क्या करें? एंड मूसा अलैहि सलाम said, Allah is with us, don't worry, Allah is with us. Then अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया उनको, मूसा अलैहि सलाम को, पता है किसी को? वो उनकी लाठी समंदर में मारी तो समंदर फट गया और रास्ता बन गया, जिससे उनकी कौम आगे चले गई. और Alhamdulillah. Okay. Yes, Alhamdulillah. So Chand aunty is also excited because the story is also so interesting. And हमने पढ़ी है बहुत बार, but there must be some new students. हाँ, तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी लकड़ी को, वो जो असा था, it was अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा दिया था मूसा अलैहि सलाम को, एक नहीं कई मौजज़े दिए थे, और उसमें से एक मौजज़ा उनकी लकड़ी थी. अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी लकड़ी को समंदर के पानी में मारो, strike your stick in the water. As soon as he struck the stick in water, the sea water parted. पूरा का पूरा समंदर डिवाइड हो गया, फट गया, और बीच में से रास्ता बन गया. Can you see it on the screen, शमीम? जी बाजी. Yes. तो देखिए कि ये समंदर था, एंड जैसे ही लकड़ी मारी तो वो समंदर, that sea water, it just solidified, और दोनों तरफ वॉल्स की तरह, माउंटेन्स की तरह वो पानी जम गया, रुक गया, थम गया. एंड बीच में से, it was just like when you just click the pause button. अगर आप टीवी देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो मोबाइल पे, and there is a pause button, right? You just click it, तो it pauses. What is this miracle कि वो लकड़ी पानी में मारी और समंदर पॉज हो गया? Who can do that? या अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा, कौन देख रहा था इस मौजज़े को? बताइए. Who was watching this? Number one, Musa alayhi salam was watching it. Number 2, Harun alayhi salam was watching it. Number 3, 6 lakh Bani Israel were watching it. और उनके पीछे कौन देख रहा था? फिरौन एंड फिरौन के सोल्जर्स. Got it? इतने लोगों ने इस मौजज़े को देखा. What a miracle. अब क्या हुआ कि वो रास्ता बन गया, तो मूसा अलैहि सलाम एंड हारून अलैहि सलाम started walking and asked the Bani Israel to move. तो ये this was अल्लाह ने कैसे बचाया. और there is, Alhamdulillah, there cannot be any such solution that can be man-made. ये तो अल्लाह ही का इतना बड़ा मौजज़ा और नेमत कि मूसा अलैहि सलाम निकल गए बनी इसराइल को लेकर. अभी फिरौन ने सोचा, उसने देखा तो सही मौजज़ा कि ये हो क्या रहा है, बट ही थॉट, अभी उसकी नजर किस पे थी? बनी इसराइल पे. उसको छोड़ना नहीं था ना अपने कैप्टिव्स को, वो स्लेव्स को. सो ही मूव्ड into that road. और जब बनी इसराइल सारे वहां से निकल गए और पीछे पीछे फिरौन, जब फिरौन बीच समंदर पहुंचा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया. अल्लाह ऑर्डर्ड द सी वाटर टू जॉइन, एंड वो जो पहाड़ बन के खड़ा था ना, पॉज्ड वाटर, वो सारा पानी फिरौन के ऊपर और उसके लश्कर के ऊपर इस तरह आया कि वो डूब गए. अल्लाह ने गर्क कर दिया उनको. अल्लाह ड्रोन्ड देम, whom? Pharaoh and all his soldiers. So now the Bani Israel saw the second मौजज़ा कि उनका दुश्मन
वही दुश्मन जो उनके लड़कों को मार रहा था, लड़कियों को जिंदा छोड़ रहा था, जिसने उनको स्लेव बना के रखा था, इतना टॉर्चर कर रहा था, टुडे वाज द एंड ऑफ देयर टॉर्चर. क्योंकि दुश्मन को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखना, इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है. तो अल्लाह ताला ने उनको कंप्लीट रिलीफ दे दिया. ये नहीं कि तुम भाग जाओ यहाँ से और भाग के बच जाओ. तो वो जिंदगी भर कहीं भी जाते तो दे वुड हैव थॉट कि कभी फिरौन आ जाएगा, कभी फिरौन के आदमी आएंगे, पकड़ लेंगे. दे आर सो पावरफुल. बट अल्लाह ने उनके दिलों में से सारा डर खत्म कर दिया कि ना रहेगा दुश्मन, ना रहेगा खौफ, ना होगा कोई टेंशन. इसको कहते हैं नेमत, अल्लाह की ब्लेसिंग. गॉट इट. अभी इतनी बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ताला किसको सुना रहे अभी कुरान की आयतों के जरिए? वो बनी इसराइल जो मदीना में मौजूद है. तो वो बनी इसराइल, क्या वो जिंदा बचते अगर उस दिन फिरौन उनको पकड़ लेता, और अगर फिरौन का लश्कर उस दिन उनको पकड़ के क्या जिंदा छोड़ता? इतना जालिम था वो कि बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ रहा था. अगर ये भागते हुए पकड़े जाते तो क्या उनको जिंदा छोड़ता? चांद आंटी नहीं छोड़ता. अगर वो जिंदा नहीं बचते तो आज के बनी इसराइल पैदा होते नहीं होते. तो फिर ये नेमत उनके लिए भी नेमत हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी नेमत हुई. गॉट इट नाउ कि क्यों उनको भी कहा गया कि याद करो वो नेमत. गॉट इट नाउ. अभी ये तो उनके लिए हुआ, हमारे लिए व्हाट इज द मॉरल? शमीम, व्हाट इज द मॉरल फॉर अस? हमारे लिए कौन सी नेमत याद दिलाई जा रही है? इसमें हमारे लिए कोई नेमत है, कोई मॉरल है? कि कोई भी मुसीबत, वी हैव नॉट सीन द मुसीबत, लेकिन अल्लाह ताला उसे टाल दे रहे हैं, वो ही एक बहुत बड़ी नेमत है हमें. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. एनीबॉडी एल्स? अनम, सुरैया? इस वक्त आप यस आयशा. इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना था. तो अल्लाह ताला उन्हें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह बनी इसराइल को हमने बचा लिया था, इस तरह आप लोगों को भी बचा लेंगे. एग्जैक्टली. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. यस अनम. जैसे उन लोगों को नेमत मिली और उनके आगे की जनरेशन्स को भी उसके बारे में बताया गया एज अ लेसन. सिमिलरली लाइक हमें भी नेमत मिली है द कुरान एज अ गाइडेंस, तो वी आल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इट. Exactly. Alhamdulillah. And not only Quran. अगर आज हमारी जिंदगी, अगर आज मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ, अगर हमारे पास घर है, पैसा है, देखिए, आई एम नॉट एनीबडी स्लेव टुडे. सपोज मी माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है. अगर मैं आज पढ़ी लिखी हुई, इफ आई एम एडुकेटेड, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मेरे माँ बाप भी पढ़े लिखे थे या उनको वैल्यू थी एजुकेशन की, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया. उनके फादर, उनके यानी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वी वर ऑल फ्री एंड वी वर वेल टू डू. अल्हम्दुलिल्लाह. ना किसी के गुलाम, ना किसी पर डिपेंडेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस चीज का भी हमें शुक्र अदा करना है. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर जैसे कुरान की बात हुई, यस, अगर आज मैं मुसलमान हूँ तो वो इसलिए कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुई. तो मेरी माँ बाप मुसलमान इसलिए है कि उनके माँ बाप मुसलमान थे. तो ये कितनी बड़ी नेमत चलते आई है हमारे पास. अगर आप सोचिए, how much time has passed since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How many years? Tell me. 1400 years. More than 1400 years. So more than 14 centuries अगर पास हो चुकी है, और अगर बीच में कहीं ये चेन
टूट जाती, बिकॉज कुरान तो ऐसे पास होता है ना जनरेशन टू जनरेशन. अगर बीच में कोई 100, 200, 300 साल का ऐसा गैप आता कि कुरान नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, if it was not, the chain was, if it was cut down somewhere or it was lost, if the strings were lost, then क्या मैं मुसलमान के घर में पैदा होती, क्या मैं आज नमाज पढ़ रही होती, क्या मेरे हाथ में कुरान होता. सो इस चीज का भी हमें शुक्र अदा करना. सो दिस एहसास, दिस रियलाइजेशन इन आयतों के साथ हमारे साथ हो रहा है. प्लस आजमाइश जितनी बड़ी होती है अल्लाह की तरफ से, अगर उस पर सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, मदद भी अल्लाह ही की तरफ से उतनी ही बड़ी भी आती है. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का देखिए, या मूसा अलैहिस्सलाम वाज गिवन अ बिगेस्ट चैलेंज टू गो एंड इनवाइट फिरौन, तो मदद भी अल्लाह की आई कि अल्लाह ने ऐसे मौजज़े भी उनको अता किए. सो टुडे व्हाट इज द मॉरल फॉर मी? इफ आई टेक बिगर चैलेंजेस अल्लाह की राह में, पॉजिटिव चैलेंजेस, तो अल्लाह की मदद भी आती है पॉजिटिवली. और फिरौन ने जो किया तो उसका जो हशर हुआ, isn't it? वैसे ही अगर आज today if we have any such rulers, जो such rulers who torture the Muslims or innocent people, तो आज भी उससे हमें कौन बचा सकता है? Who can save us? None other than Allah. अल्लाह के सिवा किसी के पास ये ताकत नहीं. तो फिर मदद किससे मांगनी है? अल्लाह से. इबादत किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की. गॉट द पॉइंट? यहाँ से हमको क्या मॉरल्स मिले? अल्लाह की बाजी की जितनी बड़ी मुश्किल होती है अल्लाह की उतनी बड़ी हमें मदद दिया, तो हमें सिर्फ सब्र और दुआ का साथ देना. यस, वेरी गुड. और जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लासेस में कि और सहारा ले लो सब्र और नमाज का, और बेशक ये बहुत बड़े कामों में से है सिवाय खुशू करने वालों के लिए. सो अगेन सेम चीज, सब्र और नमाज का सहारा ले लो. दैट मीन्स अल्लाह ही से मदद मांगनी है. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आयत पर चलते हैं. यहाँ तक क्लियर? आयत नंबर 51. आयत नंबर 51. 50 हो गई. अच्छा, 50 का वर्ड टू वर्ड करना बाकी था. यस, वो आयत नंबर 50. वो और इज जब, और याद करो जब, फरकना, फरकना, फरक फाड़ा, ना हमने, किसने? अल्लाह ताला. अल्लाह ताला फरमा रहे याद करो जब फाड़ा हमने. हम कौन? अल्लाह ताला. बिकुमुल बहरा, लिए तुम्हारे, सामने तुम्हारे. अल बहरा कहते हैं समंदर को, द सी. इट वाज द रेड सी. फअंजयनाकुम. Look at this word. It can be broken down into so many words. One word can be broken down into so many words. फ का मतलब है फिर. अंजई, बचा लिया. अंजई, निजात दी, बचा लिया. ना हमने, हम कौन? अल्लाह ताला. कुम, तुमको, बनी इसराइल को. How many words in one word? फ, फिर, अंजई, बचा लिया, ना हमने, कुम, तुमको. 4. Yes. Can you repeat it? For means? फिर. हाँ, अंजई, निजात दी हमने, बचा लिया. निजात दिया. Only अंजई means निजात दी, बचा लिया. हाँ. ना इज अल्लाह सुभान ताला. हाँ, हमने कुम, यानी अल्लाह ने. कुम, इज तुमको. तुमको. So many words in one word. अल्हम्दुलिल्लाह. व अगरकना, वो यानी क्या? और. अभी अगरकना भी देखिए, इसमें गर्क वर्ड है बीच में, गईन रा कॉफ. गर्क यानी डुबो देना, ड्रोन्ड. और डुबो दिया हमने, गर्क कर दिया हमने. वी ड्रोन्ड. आला फिरऔन, फिरऔन वालों को.
means Firaun and his army. wa और अंतुम तुम सब, देखिए तुम का मतलब भी तुम, अंतुम भी तुम और कुम भी तुम. तंजुरून और तुम सब, तुम नजर वर्ड है इसमें, नून ज़रा नजर, और तुम सब देख रहे थे. नजरों से क्या करते हम लोग, देखते, तो और तुम सब देख रहे थे. इंग्लिश में करेंगे आयत 50. What is, and try to remember when, farakna we parted, bikum for you, al-bahra the sea, the Red Sea, فَأَنْجَيْنَاكُمْ then we saved you, then we saved you. فَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا and we drowned you, sorry, and we drowned ala Fir'auna the people of Firaun. Wa antum while all of you tanzurun you were looking, you were watching. Ayat 50 हम लोग अभी कर चुके हैं. Now we will go on to ayat 51. How much time do we have? We still have time. 51. Next ayat शमीम. हाँ, उर्दू में करते हैं पहले. वह इज, वह और इज जब, वाअदना, वाअदना, वाअद में वाअदा वर्ड है, और जब वाअदा किया ना हमने, हम कौन, अल्लाह ताला, और जब वाअदा किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से. देखिए अभी तक मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया था, but we know from the ayats in the Quran कि उन्हीं का जिक्र था. अब आया है मूसा अलैहिस्सलाम का नाम. और जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईना 40, 40 नंबर जो होता है ना अपना, 40 नंबर, 40 लैलतन रातों का, 40 रातों का, 40 नाइट्स. सुम्मा फिर, इत्तखज़्तुमुल इजला फिर बना लिया तुमने, बनी इसराइल ने, इजला, इजला कहते हैं बछड़े को. व्हाट इज बछड़ा? द काफ, गाय का बच्चा, उसको कहते हैं बछड़ा, द काफ. और यहाँ पर अरबिक में क्या वर्ड है, इजला. और देखिए इस सूरा का नाम भी क्या है, सूरत अल बकरा. तो बकरा का मतलब है गाय, और गाय के बच्चे को इजला कहते हैं, बछड़ा कहते हैं. So this is one reference to the name of the surah. मिन बादिही, उसके बाद, हम लोग कहते हैं इसके बाद, उसके बाद, वही वर्ड है बादी, बाद, ही उसके. व अंतुम और तुम सब, ज़ालिमून तुम सब जालिम थे, तुम सब जुल्म करने वाले थे, यानी गुनहगार थे. In English, wa is wa'adna, and try to remember when we appointed Musa alayhi salam for arba'ina laylatan, for 40 nights. Thumma then, ittakhaztum then you took al-ijla the calf, min ba'dihi after him, after whom, after Musa alayhi salam. Wa antum and all of you, zalimun were the wrongdoers, you were all the wrongdoers. अब क्या है, देखिए हर आयत में एक स्टोरी है, और सच्ची स्टोरी. और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के साथ जो जो होता गया, हर बार अल्लाह की जो नेमत याद दिलाई जाती. यू रिमेम्बर आयत कहाँ से शुरू हुई थी? आयत नंबर 49 नहीं, आयत नंबर 47 में था, या बनी इसराइल अस्कुरु
ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतें। तो हर आयत में एक नेमत याद दिलाई जा रही। इन एवरी आयत Allah is reminding one favor, one blessing that Allah had bestowed upon Bani Israel. So in this ayat now, one more blessing is being reminded. अब क्या हुआ था कि कितने बनी इसराइल को लेकर निकले थे मूसा अलैहिस्सलाम? 6 लाख। 6 लाख, है ना? अब फिरौन गर्क हो गया, फिरौन इज डन, ओवर, ओके। एंड दैट वाज, ऐसा कहा जाता है कि दैट वाज द डे ऑफ 10 मुहर्रम। दैट वाज, व्हाट वाज द डेट? दैट वाज 10 मुहर्रम। तो इसीलिए उस दिन को I want to read that hadith. हाँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, क्योंकि उसी दिन बनी इसराइल को फिरौन के हाथों से छुटकारा मिला और अल्लाह ने उनके दुश्मन को गर्क कर दिया। तो उसका शुक्र अदा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। गॉट इट? 10 मुहर्रम का रोजा कहाँ से है? क्योंकि उस दिन फिरौन को अल्लाह ने गर्क किया और बनी इसराइल को छुटकारा दे दिया, बचा लिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने रोजा रखा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे, लेकिन हम यहूद को सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे। उन्होंने 1 दिन का रोजा रखा था, हम 2 दिन के रोजे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए we will not single out one रोजा, we will fast 2 consecutive rozas inshallah in the month of Muharram. Got it? शमीम? जी बाजी। हाँ, और हम लोग क्या कंसेप्टिव कुछ हमको पता नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं मुहर्रम, 10 मुहर्रम का रोजा किस लिए रखते हैं? What is the misconception? इमामों का। Yes, कौन से इमाम? इमाम हसन हुसैन। आपको पता है इमाम हसन और हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुई या बाद में हुई? बाद में बाजी। बाद में हुई, है ना? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उनकी शहादत के लिए रोजा रखेंगे? समझ में आया? तो हमको वहीं पे उसका दलील मिल जाती है। और आज हमको ये प्रूफ मिल गया कि 10 मुहर्रम का रोजा फिरौन से निजात की वजह से रखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, एंड दैट इज द सुन्ना व्हिच इज बीइंग फॉलोड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कमिंग बैक टू द आयत, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो अब जो है इतने बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम निकले ना, अब घर बार सब छोड़ दिया, समंदर क्रॉस करके आ गए। सो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और 40 नाइट्स के लिए कोहे तूर पर बुलाया ताकि अल्लाह ताला तौरात नाजिल करे। और अल्लाह ताला अब जो है ना शरीयत पूरी उनके लिए नाजिल करना चाहते थे। जैसे हमारे लिए कुरान नाजिल हुआ, उनके लिए तौरात नाजिल करने के लिए 40 नाइट्स के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने बुलाया। तो पीछे से बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने, उनके पास जो भी गोल्ड था ना, अब घर से जब निकल के कोई जाता है तो व्हाट यू विल कैरी विथ यू? योर वैल्यूएबल्स, कैश एंड गोल्ड। उसके अलावा व्हाट कैन यू कैरी इन इमरजेंसी? नथिंग। सो दे वर कैरिंग द गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स विद देम। अब वो सब इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बीच में एक सामरी नाम का कौन था? सामरी नाम का सुनार था, सुनार। ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ।
तो वो सामरी के पास सबने अपना गोल्ड रखा हिफाजत के लिए. सामरी ने क्या किया, सारा गोल्ड पिघलाकर उसको एक काफ के शक्ल में स्टैचू बना दिया. सुरैया, इफ यू कैन सर्च दैट फोटो एंड पुट. तो वो सामरी ने गोल्ड का काफ बनाकर सामने रख दिया छोटा सा, और कहा कि देखो ये तुम्हारा एक्चुअल खुदा है. क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से तो माउंटेन पे बुलाया अल्लाह ने मिलने के लिए, तो वो तो अल्लाह सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है. आपका और मेरा कौन? तो ये अपना खुदा है. और हवा आती तो उसका जो नॉस्ट्रिल्स और माउथ बनाया था उस स्टैचू का गोल्ड के, उसमें हवा जाती ना तो आवाज आती. तो कहते कि देखो हमारा खुदा हमसे बात करता है, और मूसा का खुदा मूसा से बात करता है, हमसे थोड़ी बात करता है. सो दिस इज हाउ सामरी ने उन लोगों को ब्रेन वॉश किया, और सब लोग अब किसकी इबादत और पूजा करना शुरू कर दिए? उस बछड़े की. यस, जज़ाकल्लाहु खैर सुरैया. तो दिस इज हाउ समहाउ इट मस्ट बी अ गोल्डन काफ जिसका स्टैचू उसने बनाया था, और सब उसकी पूजा करने लगे. गॉट इट? सो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, ऑफ कोर्स, तो देखा कि ये लोग तो शिर्क में पड़े हैं, अल्लाह के अलावा अल्लाह की क्रिएशन को पूजने लगे. तो ये क्या था? वह अंतुम ज़ालिमून, कि और तुम सब जुल्म कर बैठे, शिर्क कर बैठे, गुनाह कर बैठे. अल्लाहु अकबर. तो बिकॉज दे वर अ स्लेव जनरेशन, सारे के सारे स्लेव्स थे, उनके पास एजुकेशन नहीं था, और अभी तक तौरात नहीं मिली थी. तो कोई भी उनको ब्रेन वॉश करता तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे. दिस इज हाउ बनी इसराइल ऑफ दैट टाइम वाज. फिर अल्लाह ताला ने कैसे उनको माफ किया या नहीं माफ किया, that we will see in the next ayat 52 onwards inshallah. बाजी आपको जिलहज का पढ़ना है. Yes, jazakallahu khair. I remember. Zilhaj, yes. Alhamdulillah. See, आप सब लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हो, and this is a डिजिटल टाइम, डिजिटल वर्ल्ड. हम सब के पास इतने वीडियोस और इंफॉर्मेशन आ गई है जिलहज के बारे में. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से नेकी के काम करने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट. I want to just have a quick 5 minutes talk about the importance of these days. So Allah subhanahu wa ta'ala ने जिलहज के first 10 days of जिलहज की कसम खाकर कुरान पाक में फरमाया है कि ये सबसे ज्यादा बाबरकत दिन है. These are the 10 most blessed days of the year. Throughout the year, how many days are there in a year? 365 or 366 days. उसमें से these 10 days are the most important and most blessed days. Alhamdulillah. Now we know these 10 days. Okay, which 10 days are these, Shamim? जिलहज के पहले 10 दिन. Yes. अभी do you know about Ramzan, the फजीलत? रमजान की जो शबे कदर का जिक्र है कुरान में, right? There is a surah called Surat Al-Qadr, right? So उसकी कोई there is no date given as such. We have to search that blessed night in the last 10 days, odd nights, not days, or in the last 10 odd nights. And there can be one of those nights. So out of those last 10 nights, one of them can be Shab-e Qadr. So you don't know which is that, but that one night is more blessed than more than 1000 nights, right? Uski ibadat se zyada afzal hai. So that is about nights. But हमने सिर्फ रमजान को पकड़ लिया और हम सब क्या बन गए? सिर्फ रमजान वाले. Throughout the year we forget all the ibadat and worship
Only in the month of Ramzan we become so engrossed in worship once again. Allah Ta'ala ने हमको in 10 days of Zilhaj, इसमें एक दिन बता दिया है, one day, the most blessed one day. Which is that day? One, अरफात का, अरफात का दिन, 9 Zilhaj. लिख लीजिए, अरफात का दिन is 9 Zilhaj. तो what is the hadith? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? करने के काम क्या है? देखिए, one day is not 24 hours. It is either 12 or 15 hours. How many hours one day consists of? Either 12 or 15 hours. बराबर है? So पूरे 365 days में से we know which 12 or 15 hours are the most blessed. और उसमें हमको रोजा रखना है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? Suraya, if you can put that hadith of fasting on 9 Arafat. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई 9 अरफात यानी 9 जिलहज का रोजा रखे, उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ. पिछले तो समझ में आता है, one past year whatever you have sinned will be erased, forgiven, but 1 year in future whatever you are going to sin already is forgiven. Subhanallah. और एक दिन का रोजा, not more than 12 to 15 hours or 18 hours. Alhamdulillah. So most important thing to do, 1 रोजा. फिर माफी की बात हो रही है तो नंबर 2 खूब तौबा करेंगे within those 15 hours. नंबर 1 रोजा रखेंगे, नंबर 2 खूब तौबा माफी, नंबर 3 तकबीर अल्लाहु अकबर, एंड नंबर 4 चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. इतने 4 काम अगर हमने कर लिए, इसके अलावा नमाज तो फर्ज ही है, that I'm not counting. This is extra worship. This is minimum that we do. Alhamdulillah. And we have grabbed most of the blessings of that blessed day. Alhamdulillah. और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा तो मिलेगा ही, but minimum इतना करना है. जज़ाकल्लाहु खैरा. Suraya. So can you repeat for me, Shamim, what 4 things did we discuss? सबसे पहले हमें रोजा रखना है 12 से 15 Yes, घंटा जो हदीस भी है. स्क्रीन पर है. जी वो पढ़ूं बाजी. हाँ पढ़ लो. यौम अरफा के रोजे की फजीलत. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अरफा 9 जुल्हिज्जा के दिन का रोजा पिछले साल और अगले साल के सगीरा छोटे गुनाहों का कफारा बन जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह. So number 1 रोजा रखेंगे, number 2 इस्तगफार तौबा करेंगे, number 3 चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. yes, and number 4 तकबीर पढ़ेंगे. number 4 तकबीर पढ़ेंगे. ये इतना मिनिमम. अल्हम्दुलिल्लाह है ना. थ्रू आउट द डे वी कैन डू दिस. रोजा तो रहेगा, नमाज भी पढ़ेंगे, तौबा करते रहेंगे, तकबीर पढ़ते रहेंगे और चौथा कलमा पढ़ते रहेंगे. इसके अलावा यू कैन डू इफ यू वांट मोर तिलावत एंड मोर इबादत. अल्हम्दुलिल्लाह. सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रिफ्लेक्शंस. बाजी आपने होमवर्क भी दिया था. इफ यू वांट टू. होमवर्क कितने लोगों ने होमवर्क किया है? व्हाट वाज द होमवर्क शमीम? बाजी हमको बताना था कि अभी तक की जितने आयतें हमने पढ़ी है तो उसमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी, द रीजन एंड व्हाट डू यू टेक फ्रॉम. Yes, alhamdulillah. So what do you suggest? शमीम, चांद आंटी, सुरैया, आप तीनों क्या सजेस्ट करते हो कि हमको क्लास में ये सुनना चाहिए या ऑडियो मैसेजेस मंगवाने चाहिए स्टूडेंट्स से?
ऑडियो मैसेजेस मंगा लीजिए, है ना? तो आप भेजेंगे चांद आंटी? जी हाँ जरूर। तो जो कोई ऑडियो मैसेज अपना शेयर करेगा, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर का या मैक्सिमम 3 मिनट्स का ऑडियो मैसेज यू कैन सेंड, एंड जो भी सेंड करेगा वी विल शेयर इट इन द ग्रुप फॉर एवरीबॉडी टू हियर. ओके, सो आप मुझे ये ऑडियो मैसेजेस भेजना शुरू कर दीजिए, जो भी आपने होमवर्क किया है, जो हमने सीखा, कौन सी आयत, विच आयत वाज योर फेवरेट सो फार, व्हाट हैव यू लर्नड एंड हाउ डिड यू स्टार्ट अप्लाइंग इट. आप शेयर करेंगे अपना वॉइस मैसेज मेरे साथ, या यू कैन शेयर द नंबर्स शमीम on the screen. You can share it with Shamim or Sana or me or Suraya. Okay, चलिए reflections quickly. बाजी आज हमने सीखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से यही सीखा है, यही हमें लेसन मिला है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तो बस अल्लाह के पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के इज़्ज़त से ही आती है और अल्लाह ही इसका हल देता है. Exactly. Next. मैं बोल रही हूँ, आज 10 मुहर्रम की अहमियत पता चली कि फिरौन को अल्लाह ने गर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात मिली, इसलिए शुक्र अदा करने के लिए उन्होंने 10 मुहर्रम का रोजा रखा. लेकिन हम यहूदी से अलग है, तो हम एक दिन नहीं लेकिन मुहर्रम के 9 और 10 2 रोजे रखते हैं. Yes, very good. Alhamdulillah. Suraya. Anam. Shaheen. अस्सलामु अलैकुम बाजी. वालेकुम सलाम. आज बहुत सालों की एक मिथ थी जो 9 और 10 के मुहर्रम के रोजे के बारे में थी, अबाउट इमाम हसन और हुसैन. आज तक मतलब बहुत लोग जिनको ये पता नहीं है अभी भी फॉलो कर रहे हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी जिनको मैं जानती हूँ जो ये फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझाने की कि लॉजिकली स्पीकिंग जब उनका वफात ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ तो किस तरह से हम लोगों को ये दिन उस वजह से नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आज जो रीजन मालूम पड़ा है उस वजह से मनाना चाहिए. Exactly. Alhamdulillah. So Quran clears all our misconceptions. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह. Yes, Shahida. जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करे. Whoever wants to share reflections. Shahida, quick. शाहिदा आवाज नहीं आ रही है. I cannot hear you. अफशान, अनम, अफीफा. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल सही कहा. और दूसरी सिस्टर ने कि हम रखते आ रहे थे बचपन से 9-10 का रोजा, लेकिन हमें बिल्कुल सही नहीं मालूम था. हम लोग यही समझते थे कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के लिए रखते हैं. मगर आज सही मालूम होके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हम भी आगे जिन लोगों को नहीं मालूम जरूर शेयर करेंगे. इंशाल्लाह हमने ये सीखा. Okay, inshallah. इंशाल्लाह. Any other reflections? के दुआ पढ़ ले. चलिए दुआ पढ़ लेते हैं. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. हम नियत करते हैं इंशाल्लाह कल हम सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड पर ज्वाइन करेंगे. होमवर्क आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भेजना है, और जो कुछ हमने पढ़ा उस पर अमल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, इनवाइट भेजेंगे इंशाल्लाह. और हम दुआ करते हैं अल्लाह जितनी बहनें यहाँ बैठी है उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, उनकी औलाद को नेक हिदायत दे, हम सब की औलाद को हमसे ज़्यादा नेक हिदायत दे, हमारे वालिदैन और हमारे टीचर्स पर खूब रहम फरमा, और हम सब से राज़ी हो जा. या अल्लाह 9 ज़िलहज के दिन जितने लोगों को तू जहन्नम की आग से निजात देगा, या अल्लाह उन सब में हम सब को भी लिख ले, शामिल कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हम सब को जहन्नम की आग से बचा ले. आमीन सुम्मा आमीन.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। Ameen.